Namaskar, good evening, and hello. I am Avni Katakkar, your host from Team Story Scrappers. आप जानते ही हो मुझे, but this time we are meeting after a long time, and I'm waiting for you all to join in, क्योंकि we are starting a new session. हमारा जो conversations unplugged है, with that we are starting Shakti Talks because you know how much we love to admire and celebrate women and womanhood. We have come up with these sessions called Shakti Talks, where we are trying our hands on bringing in women from different walks of life who wear different hats, who have different passions, who have different essence, and who are going to inspire you in a multitude of ways. So yeah, please join in for each session. ये ही वाला नहीं, इसके बाद के भी सारे. We would be very glad. And yeah, so बात करते हैं हमारे आज के guest की. Before that, pardon my throat because the show must go on. So yeah, our today's guest, she is, like I said, she's a woman of many hats. She is someone who is an actor. She is someone who is a theater performer. She is a storyteller. She is Mrs. India 2014. She is a mother. She is an author and whatnot. She is someone very beautiful. And she is the one and only Shweta Padda. Okay, so let me get the beautiful lady on stage and then उनसे बहुत सारी बातें करनी है हमें. Yeah, here's Shweta for you, the woman who is Bill of all trades. Good evening. Namaskar. Namaskar, Abhi, Shweta. what a beautiful introduction. I mean, I'm overwhelmed. I'm so happy to hear. कुछ चीजें इंसान भूल जाता है पर आपने बाखूबी मुझे याद दिला दिया and I'm like, okay, well done, girl. आप भूलने नहीं देंगे आपकी ऑडियंस को. ओके, सो वी आर डूइंग दिस लाइव ऑन फेसबुक, बट रिमेंबर आप श्वेता को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे बिकॉज यू आर गोइंग टू वॉच सम रियली ब्यूटिफुल कंटेंट ऑन हर इंस्टाग्राम पेज. तो हम कमेंट्स में आपका इंस्टाग्राम पेज जरूर टैग करेंगे श्वेता. Thank you. Thank you so very थैंक यू much. सो मच. And thank you, तो Abhi, for calling me here for this wonderful conversation. And thanks to Scraper and everybody, those who are involved in this beautiful initiative. And what better day would have been Women's Day. हालांकि ये बोलने की बात तो नहीं क्योंकि हर बार हर इंसान हर those who get the opportunity to speak वो कहते हैं कि विमेंस डे नहीं होता पूरी जिंदगी और पूरी हर दिन उनके लिए होता विच इज actually true but I am glad and I am very happy that I am blessed being in this womenhood. मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ी ताकत और ब्लेसिंग एक और क्या हो सकती है. सो वेल पुट that this is a Shakti Talks and एक विमेन दूसरी वुमन को कन्वर्स कर रही है उसके साथ उसको सपोर्ट कर रही है और एक पूरा हुजूम उसके पीछे फीमेल्स का है तो इससे पावरफुल और क्या हो सकता है. आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू वंस अगेन. That's our pleasure. Thank you so much on behalf of Team Story Scrapers because when I thought of like मुझे बोला गया Shakti Talks करना है तो I don't know why but the first name came in my mind was you because I see you managing so many titles, so many roles so effortlessly and that's unbelievable. Sometimes ऐसा लगता है कैसे कर लेते हो. So with that, I would like to ask you, मतलब ये जनता भी शायद यही सोच रही होगी. I want to ask you that who is Shweta Padda beyond all these titles that you have achieved? Well, good question to start with. Avni and all my dear audiences, those who are here. You know what? My journey
actually defines beyond the titles. I'm constantly learning in life. मेरे लिए I address myself as a student of life. मैंने जिंदगी में एक जज्बा, एक शब्द है, एक अल्फाज है, जज्बा, उस जज्बे को हमेशा अपने अंदर बरकरार रखा है। और वो एक जो मेरे अंदर जो एक छोटी बच्ची है, मैं उसके साथ बहुत खेलती हूँ, उसके साथ बहुत बात करती हूँ, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इट इज देयर। तो मैंने I live, this is the formula, this is the fundamental, this is the principle of my life, that I live every moment. I, acknowledge everything that has happened in that particular moment. I believe in emotions. So चाहे वो तकलीफ वाले हो, खुशी वाले हो, गम वाले हो, या जिस तरह के भी हो, मैं इमोशंस, सेंसेस ऑफ फीलिंग्स जो है उनको बाखूबी बिल्कुल उनको तवज्जो देती हूँ और इम्पोर्टेंस देती हूँ, उनकी वैल्यू करती हूँ, और वो जो खून की रवानगी है उसको बरकरार रखती हूँ। इस तरह से मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जैसा आता है मैं उसको एब्जॉर्ब करके अपने तरीके से हैंडल करती हूँ। या और मैंने बहुत तजुर्बे जो हासिल किए हैं वो खुद की जिंदगी में जो है उसके साथ तो किए हैं, अमूमन हर इंसान करता है, लेकिन मैंने दूसरों को देख के भी उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अच्छे बुरे जो भी थे, बहुत सारी चीजों ने मेरी पर्सनालिटी को भी बहुत शेप किया है। कुछ ऐसे लोग होते हैं अवनी जो अपनी बात कह देते हैं, रख देते हैं अपने तरीके से और हल्के हो जाते हैं, दे फील लाइट, उनके स्ट्रगल्स को वो शेयर कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो अंदर ही अंदर अपने स्ट्रगल करते होते हैं। एंड we are going to go in the other pedestal also when we talk about this kind of a medium. तो मुझे लगता है कि मेरी जो भी पर्सनालिटी है या बनी है, या in past these 20-25 days, whatever I have shaped myself is that I'm always at the receiving end. मैं आपसे भी कुछ सीख के यहाँ से चले जाऊंगी, मैं बहुतों से रोज सीखती हूँ, और मुझे ऐसा फील होता है कि when life is there, blessed with that, you need to learn, you need to absorb, and you need to implement, and you need to execute and keep going. It's a process, it's a journey. So I'm very happy in that journey. So coming back to the point that beyond the titles, I'm simply a student of life, that every experience, good or bad, eventually had made me. And I feel that my story is worth sharing. Well, everybody's story is well sharing, but here is the platform where I can come up with my own ideas and thoughts very well. Thank you so very much. No, trust me. I believe. आपको अभी जब सुना तो I feel successful women like you are the ambassadors of humility. जैसे आपने कहा कि you keep learning, you learn from people you meet, and I have seen it personally, so I can say that. And I don't feel ashamed of anything कि अरे आप किसी जगह पे पहुंच गए, लेवल पे आ गए, स्टेटस को आपको पूछना नहीं है, आपको शर्म आ रही है। नो, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन एक्टर ऑल्सो, या किसी भी तरह के जो भी एंडेवर्स में मैं हूँ या कर रही हूँ, Avni, I am not hesitant or apprehensive or scared कि अरे के लोग क्या सोचेंगे। मैं कभी नहीं सोचती है। अगर मैं ये बात सोचती तो शायद मैं आज आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर नहीं कर रही होती, तब ये शक्ति टॉक्स नहीं कर रही होती। I swear that kudos to you, lady. And I've seen you doing this so often and so gracefully that it's kind of a women empowerment in its own. And with that, Minakshi Jain has a comment for you. She's saying, बहुत खूब श्वेता, जीवन जीने का फलसफा यही होना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक शेर है जो मेरा खासा पसंदीदा है, मीनाक्षी जी के लिए मैं एक शेर कहना चाहती हूँ, जो कि मेरी तरबियत यानी कि मेरी अपब्रिंगिंग में और सलाहियतों में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और वो इस तरह से है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये है कि अगर अनलेस कि आप इनिशिएट नहीं करेंगे तो आपको जो ऊपर वाला बैठा है वो भी आपका वेट कर रहा है कि तू चल एक चाल, मैं पीछे खड़ा हूं। तो वही होता है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा।
तो मैंने अपनी बहुत लाइफ में यही सीखा है कि यू नीड टू कीप गोइंग. सो दिस That's इज what व्हाट we इज are माय learning फलसफा. from you. That's what we are learning from you. और आपने जो अभी शेर फरमाया है, मतलब माहौल बन गया है, तो इस माहौल में सवाल तो बनता है श्वेता, बिकॉज यू आर एन ऑथर, you are constantly busy with your work in cinema, in theaters, and on TV screen. So, how did you know that storytelling and performing it is your calling? How did you know that? Well, And Avni, when this did has you know? never been. Yeah, okay. So this has never been my sudden realization कि अचानक से मुझे ऐसी ऊपर से एक लाइट आई और मुझे कहा गया कि तुम स्टोरी टेलिंग करो और मैं स्टोरी टेलिंग करने लगी. ऐसा कुछ नहीं हुआ था. तो जो भी श्वेता आपको दिख रही है, थोड़ी बहुत जो भी अदना सी जो मैं हूँ, अचीव थोड़ा बहुत जो किया है, थोड़ा बहुत, ये मेरे लिए है, दुनिया के लिए नहीं. अचीवमेंट मैं अपने लिए ही मानती हूँ. मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं यहाँ तक आई, और वो खालिस मेहनत, खरी मोहब्बत और हिम्मत के साथ. तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस अवनी. आई मीन, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कहा कि जिंदगी चल रही है और मैं उससे सीखती जा रही हूँ. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, कि जब भी मैंने अपने सेशंस या इवेंट्स किए हैं, जब भी मैं स्टोरी टेलिंग कभी भी करती थी, या लोगों के साथ बैठ के बातें हो रही है, वो गपबाजी हो रही है, वो बैठक हो रही है, वो बकैती हो रही है, तो मैं ना हमेशा ये देखती थी कि जिस तरह से मैं बात करती होती थी, उस वक्त तक मेरे पास स्टोरी टेलर एज ऑफिशियल टैग नहीं था. तो मैं देखती थी लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं और बड़ा हंसते हैं, या मैं कोई ऐसी बात कह रही हूँ जो उनके दिल को लग रही है, तो वो इमोशंस भी आ रहे हैं उनके. Mhm. तो मैं एक बात सोचती थी, जब मैं अपने घर में किस शेयर करती थी या मैं अकेले होती थी, तो मैं सोचती थी ऐसा क्या कह दिया मैंने कि लोग मेरे को इतनी वाहवाही कर रहे हैं और इतनी मोहब्बत दे रहे हो, इतना प्यार. कुछ वक्त के बाद ये मैंने अपनी रियलाइज किया कि मैंने जो कहा उससे ज्यादा, जो कंटेंट मैं उसकी बात करी, उस कंटेंट से ज्यादा ऑनेस्टी और जो रियल रियल जो कनेक्ट होता है, जो एनर्जी है, जो वाइब है, Yeah. उसमें दैट मैटर्ड अ लॉट. एंड मेरा ना मैंने परफेक्शन से ज्यादा जो भी एक होता है ना कि आप सीख गए, तो ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसने सब सीख लिया. तो बिल्कुल सही. वो मतलब वो करते करते उस परफेक्शन को तो नहीं अचीव किया, लेकिन ऑनेस्टी ने वो जगह मुझे दिलाई. रियलिटी, जो रियल टर्म में जो हम बात करते हैं, वो चीज मुझे दी जिससे कि लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे थे. इवेंट्स होते थे, होस्टिंग होती थी मेरी और सेशंस होते थे, उसके बाद लोग आके मुझे अपनी कहानियां या अपना जो वो शेयर करते हैं ना फीडबैक, दैट क्रिएटेड एन इमोशनल स्पेस. तो मुझे समझ में आया कि भाई ये स्टोरी टेलिंग जो हम दादी नानी मम्मी पापा चाची मौसी और अपने बच्चे और अपने आसपास जो हम जो भी हम बड़े हुए हैं, ये सब क्या था. दादी नानी की कहानियां ही क्यों कही गई, बिल्कुल सही. इमोशंस था उसमें, वो बिल्कुल रियल था. वो सुनाती एक ही कहानी थी मेरी दादी, लेकिन हर बार एक नया कैरेक्टर का नाम लेके, कभी राम होता था तो कभी कुछ होता था, कहानी एक ही चलती थी, बट वो कनेक्ट था कि मेरी दादी मोहब्बत से सुना रही है. तो दैट वाज अ रियल कनेक्ट. एंड then I understood that storytelling is not only the medium of entertainment, it's in a deeper level. I mean, that's a connect is deeper. So Mhm. I believe that I have in me. So this is how it worked. You definitely have it in you. When we watch your reels, when we see you watch you, the first time I had watched you perform, oh my God, I was mesmerized. So I can vouch that you definitely You connect did the same amazingly magic with in the us audience. also. Don't you say that like that. Avni, we connected because of that beautiful energy that you have. You are a beautiful soul, and मैं बहुत easily समझती हूँ इस चीज को, क्योंकि I've been through this kind of journey and I am still. I understand the vibration very easily. So here we are. Thank you. You are too kind to say that. And like I said, ki Shweta is a Jill of all trades. So Shweta gets a new question, which says that uh, आपने थिएटर किया है, आपने मूवीज की है, आप अभी स्टोरी टेलिंग शोज कर रहे हो, आप खुद के शोज कर रहे हो, यू परफॉर्म एट क्यूरेटेड इवेंट्स. So Shweta, amongst all this, what do you feel more like a home? एज ए वुमेन कहो, एज एन आर्टिस्ट कहो, आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर घर?
Well, Avni, you know what? These are different mediums, different. Um, how to put it? I mean, like each medium, like you said, film, theater, storytelling. So they're different. They give me everybody actually, those who are connected to or are performing in these areas, they learn different things from different mediums. For example, Mm-hmm. if we talk about films, it gives us patience. How? It gives us patience because it has different layers to it. You need to be patient. हर चीज जब आप even if you are making a tea, आप पानी को उबालते हैं, अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, उसको थोड़ा होने देते हैं, थोड़ा रुकते हैं, एक स्टेप हुआ. उसके बाद आप थोड़ा उसमें चाय पत्ती और चीनी डालते हैं, थोड़ा रुकते हैं कि थोड़ा पक जाए तो इस चाय पत्ती का टेस्ट ना आए हमारी चाय में. फिर आप दूध डालते हो, देन जाके कहीं चाय बनती है. मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि इससे सिंपल एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता. फिल्म इज अ बिग मीडियम. इट टीचेस यू पेशेंस बिकॉज आज हुआ और कल उसका रिजल्ट आए ऐसा नहीं होता है. At the same, similarly, if we talk about theater, it gives you discipline, and the most important thing that it gives and impart is the presence, because it doesn't have any retakes. You have to be present at that moment. That I have learned from my teacher, who is Firoz Abbas Khan Sahab. He is my first institution of this medium. I had been doing Mughal-e-Azam. तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा था. मुझे लगता था कि टीवी कर रहे हैं तो हमें सब आता है. उन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी एक तरह से, जो मेटाफोरिकली मतलब बोलने का ये है कि फॉरगेट योर टीवी थिंग. यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर. आप कैरेक्टर नहीं, आप उस वक्त आप वो हो. यू आर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. यू हैव टू बी, आपका हाव भाव, बोलना चालना. सो एंड द डिसिप्लिन, यू हैव टू लर्न ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर. तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, your presence is also very, very, very important. That's a priority. So this is for theater. And now coming to storytelling, here I feel that I am closest to home. It is because it is very direct, like we are talking, me and you. Yeah. And there It's a is no direct bridge. Yeah, there is no barrier or bridge between anything. It is like narrator and the audience and the listener. So I feel so connected कि मैं उस वक्त आपकी आंख में देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, और ये हो रहा है. So I still remember some storytelling sessions where people, same happened, like after the sessions that they used to come and talk to me, that feedback, और जो आके वो अपने emotions में से share करते थे, that is what is real कमाई. तो ये मेरे लिए storytelling would be the home to me, the closest home to me. I think I'm able to answer your question. Yeah, I am amazed by your kindness, because kindness बोल सकते हैं, और इससे ज्यादा your profoundness of thinking, because you are right. जब आप direct connect करते हो किसी audience से, तो it is so much overwhelming, so much to learn from them. हमें ये पता चलता है कि उन्हें हमारे बारे में क्या पसंद है, या वो कितने जुड़ पा रहे हैं हमसे. तो yes. there are, ऐसा कहा जाता है कि we have senses, 5 senses, right? हमें सुनने की आदत कम है. हम सुनते कम है, हम बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, है ना? तो ये जो आदत है, ये जो सेंस है, सबसे लीस्ट डेवलप्ड है हम ह्यूमन में. और अब तो और कम हो गया बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. Because we are constantly consuming the required. Apart from the required, the more percentage is of unrequired consumption of that social media stuff, content. तो हम सही पहले तो सुन नहीं रहे, और फिर अगर सुन रहे हैं गलती से तो सही नहीं सुन रहे. और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं सकते साफ. तो हमारे टीचर्स ने और हमारे घर में जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसमें हमें पढ़ना, सुनना और बोलना और देखना और करना, इन सब का इक्वल बैलेंस रखा गया है. मे बी दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर दैट यू सी इन मी,
because I use deliberately, as purposely, intentionally, and now it has become the part of my personality that I use all my senses. Beautiful. So this is the reason that I'm connected to storytelling more than other mediums. Wonderful, wonderful. And we have literally got some fans for you. There's Meenakshi Jain ji and Purnima Sivaraman ji. So I would like to tell you, these are our, what to say, our constant writers. They write with us. They are writing with us since a long time. They are good bloggers, amazing bloggers in Hindi and in English. Both of them are authors, and they are 70 plus ladies, and they slay. And currently Meenakshi Jain auntie ji is, she's constantly watching you, and she वो अपने comments उनके शुरू है. We will, like, I'll share the comments with you later, but yeah, she is enjoying it. And for Thank you the so much, thousand, Meenakshi ji. I'm glad that you're resonating with me, and this is whatever is happening has a good energy. I can sense that, I can feel that. Yeah. Absolutely. And आप सबको ये बताना चाहूंगी कि श्वेता जो है वो बज़्म परफॉर्म करती है. पहली बार जब मैं इनसे मिली तो मुझे पता ही नहीं था बज़्म क्या होती है. जब इन्होंने कहा मैं परफॉर्म करूंगी अवनी, तो तब तुम देखना. और जब मैंने देखा, जब इनको सुना, तो इट वाज मेलोडी, स्टोरी टेलिंग की मेलोडी बोल सकते हैं बज़्म को. तो श्वेता इज आई गेस द वन एंड ओनली who performs Bazm with such dedication, and she's the founder of Bazme Dastan. So, Shweta, tell us, how did you give birth to Bazme Dastan, please? थैंक यू अभी. मैं बड़ा अच्छा लग रहा है जब आप आपके एफर्ट्स इस तरह से एक्नॉलेज होते हैं, और आप कर क्यों रहे हैं. आप यू आर डूइंग इट फॉर पीपल, यू डू इट फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, बट यस, कब तक उस चीज को लोगों तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी है, और मैं कोशिश कर रही हूँ. ओके, सो अवनी, बज़्म दास्तान, it came out from a very simple observation. As I told you that I've been अच्छा, मैं पहले बता दूं कि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ उसका पेशावर से हूँ मैं. नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से हूँ. तो मेरे वालिद की, मेरे पापा की पैदाइश वहाँ की है. तो हमारे यहाँ पे पंजाबी, उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश सब चलती है. हमारे यहाँ पे उर्दू लिखना, क्योंकि उस जमाने में सब उर्दू में ही लिखते थे, और मैंने बचपन से ही वही लिसनिंग की जो बात की, तो मेरे घर में वो कॉन्टिन्यूसली होती थी चीजें, और मैं सुनती थी. बज़्म यानी इट्स अ महफिल, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड दास्तान मीन्स कहानियां. तो मैं घर में ही बज़्म दास्तान बचपन से ही चलता आया, तो वो खून में तो आ ही गया था. अब क्योंकि जबान की बात थी, ये उर्दू में होती है, कुछ हिंदी में भी होती है, तो इसे मैंने ना ऑब्जर्व किया, और मैंने देखा कि हम धीरे धीरे अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं. And I feel that communication is the only way to keep it alive. तो मैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मैं एजुकेशन से भी रिलेटेड हूँ, आई एम अ प्रोफेसर ऑल्सो ऑफ कम्युनिकेशंस एंड आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आपको एक मीडियम ऑलरेडी है, इसे आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती हैं. तो मैंने बज़्म दास्तान को क्रिएट किया. दैट्स अ म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग स्पेक्टिकल, जहां मैं स्टोरी सुनाती हूँ. वो स्टोरीज किसी की भी हो सकती है. तो जो पहली बज़्म थी वो अमृता प्रीतम, साहिर लुधियानवी और इमरोज साहब की थी. लव स्टोरी थी, जिसमें मैंने 7 मनाजिल इश्क के, यानी 7 स्टेजेस ऑफ लव को पढ़ा था. मैं कहानी पढ़ती हूँ, उसके बीच में कुछ अशार लिखे होते हैं मेरे, वो, और कुछ अजीम जो शायर हैं उनके पढ़ती हूँ. साथ में उसके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में गाने होते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानी सिनेमा के नहीं हैं, वो कुछ सूफी उसमें होते हैं, तो वो उसके साथ गाया जाता है. लोग बड़ा एंजॉय करते हैं. एंड रीजन मेकिंग बज़्म दास्तान was that I wanted to create space where the spirit could return. You know, जो चीजें हम भूल गए हैं, उसे लाया जाए कहानियों के तौर पे. अब लोगों को क्या मजा आता है कि ऐसे बात करना नहीं तो चलो बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल दिया जाए, अच्छा ये नहीं तो चलो थोड़े से शेरो शायरी हो जाए, ऐसे नहीं तो चलो जी गाना गा लो, तो ऐसे नहीं, तो इसको एक पैकेज बना दिया कि भाई
आपका जो अटेंशन स्पैन है वो मैं इधर उधर होने ही नहीं दूंगी, आपको ये बोलते बोलते इसको ले आऊंगी, इसको ले आऊंगी, तो आप हिल नहीं सकते। इंजॉय कीजिए, आखिर में मैं नचा के ही बेचती हूँ। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट्स अबाउट रिवाइविंग द कल्चर ऑफ लिसनिंग एंड डायलॉग. So basically that's the reason. And दास्तान गोई जैसे मेरे उस्ताद जो आप भी उनके लिए परफॉर्म कर चुकी हैं, दानिश साहब जी, एक अशार हक साहब है, बहुत ही खूबसूरत दास्तान गोई करते हैं, किस्साबाजी होती है। इस तरह की हम लोगों को ना ये जो रिवायतें हैं, जो तहजीब है, इनको बनाए रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये जबान की बात नहीं है, हिंदी में पढ़ सकते हैं, संस्कृत में पढ़ सकते हैं, अपनी जबान में पढ़ सकते हैं। मैं उर्दू में और हिंदी पश्तो में कंफर्टेबल हूँ तो मैं उसमें करती हूँ। तो दिस इज द रीजन। वाओ, और ये रीजन सुनने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि श्वेता, आप जितनी खूबसूरत दिखती हो ना, उससे ज्यादा आपकी सुंदर और खूबसूरत सोच है। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे मालूम नहीं ये थी कितनी अच्छी सोच है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एंड Avni, I think I have shared this. I mean, you are a very good friend of mine. You know about me that 2025 till 2025 I shared this with you that this is, I mean, I'm done with whatever I wanted to learn. I mean, learn as in to get the designation or get the, you know, khitab kind of a thing. Now from 2026 I just want to give back to the society, contribute to the nature. जितना मुझे भगवान ने दिया, नाम भी श्वेता दिया जिसका मतलब है गॉडेस सरस्वती, तो मैं ना चाहते हुए भी मुझे ये मिलना ही था। तो मैं उसको अब वापस कर रही हूँ। तो अब जितना मैंने लेना था कुदरत से, वो सब लेके जज्ब करके अब मैं वापस दे रही हूँ। सो दिस इज व्हाट इज माय कोशिश। And this is what is my definition of someone having beautiful soch. And the goddess Saraswati is wearing a shade of yellow today. See. अरे बाप रे, थैंक यू, थैंक यू। Yeah, I love it. This is my color. Yeah, suits you so much. And अभी जैसे हमने बज़्म दास्तां की बात की है, आपका जो जो तरीका है कहानियां सुनाने का या पोएट्री सुनाने का, वो हम सब जानते हैं, जो भी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे आई एम ऑल्सो स्टोरी टेलर, आई एम अ लर्नर, एंड यू आर समवन हु हैज लर्न्ड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, व्हाई डू यू थिंक कि हमारा ये जो अभी डिजिटल वर्ल्ड है उसमें, why do you think storytelling is so powerful? Why is it so? Very easy, very easy to understand that there has been a debate going on since long कि AI Hmm. आ गया will replace everything, ये आ गया will Hmm. replace this. Human emotions Hmm. cannot be replaced at any moment of till the time we are alive. Yes, yes, yes. You know, one should understand that these technologies are the support to us. इसको हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको पहले पायदान में रख रहे हैं और अपने आप को पीछे कर रहे हैं। We are getting dependent on that. Yeah, That has I been created to support us. So मैं Hmm. इस सोच को रखती हूँ कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहे, आती रहे चीजें दुनिया में। आई एम सॉरी, अवनी इज अ टेक्नोलॉजिस्ट, यू डोंट, आई मीन आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीथिंग। No, I am a food technologist. I am a dairy technologist. तो गुड मेरा, गुड, वेरी गुड, yeah, वेरी गुड। सो मुझे डर लगता है कि I कोई am nice ऑफेंड ना when हो it comes जाए। to that. नहीं, नहीं. So मुझे लगता है कि see, even if we are taking the help of these technologies, आप इमोशंस कैसे उसको सिखाएंगे? आप उसको सिर्फ फीड कर सकते हैं, उसमें सिस्टम डाल सकते हैं कि भाई ये कर दो तो ऐसा आ जाएगा, ये कर दो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, द मोस्ट कॉमन इज चैट जीपीटी एंड व्हाट इज द अदर थिंग, एआई राइट समथिंग ना। सो हाँ, yeah. उसको चलाने के लिए भी दिमाग चाहिए, So उसको true. चलाने के लिए भी प्रॉम्प्ट चाहिए। तो वो दिमाग कहाँ है? वो तो हमारा है ना। So because the technology is changing or is coming and you know changing the whole world, thanks that has come and that is making our work more convenient, easy and conducive, creating conducive environment for us so that हम बाकी चीजें जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। Why not to take positive thing out of it? But emotions Yes, cannot be changed, right? मुझे ये yeah. बहुत खलती है बात कि कोई भी चीज आती है ना जब दुनिया में, तो लोग पहले उसकी नकारात्मकता को बढ़ा बढ़ा के, नेगेटिविटी को बढ़ा बढ़ा के उसका चार्म खत्म कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि स्मार्ट लोग कौन होते हैं, जो
उस चीज का फायदा उठाएं जिसमें जान नहीं है, हमने जान डाली है सेल्स और बैटरीज के थ्रू। हम तो दिल रखते हैं ना, तो हमारा दिल और दिमाग से ज्यादा ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं, आज टेक्नोलॉजी भी हमारे ही दिमाग ने बनाई है। यू नो व्हाट अबनी, वी नीड टू हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। यही एक बहुत बड़ी चीज रही है मुझे यहाँ तक आने में, या किसी की भी कमी को हमेशा वो करते रहना। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट ओनली, दैट लेट अस टेक गुड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू। आई मीन वी आर मोर देन AIs, you know. And if we talk about today, you know, when we even watch a film, listen to a podcast and read a book, for instance, हमारे साथ क्या रहता है? स्टोरीज। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं? हम किसी की कहानी सुन रहे हैं, हम अपनी बता रहे हैं, हम किताबें पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, हम फिल्म देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं? देयर इज अ स्टोरी टू दैट। एंड व्हाट डज स्टोरी हैव? इमोशन। कैन AI जनरेट दैट? नो। अटेंशन स्पैन ना लोगों का बहुत छोटा होता जा रहा है ना? इसीलिए ये स्टोरी टेलिंग को डिजिटल वर्ल्ड के अगर हम एडवांटेज में अगर उसमें ले लें, कितना इम्पैक्टफुल हो जाएगा। पीपल शुड यूज दिस। एक्चुअली मीनिंगफुल कनेक्शन और हो जाएगा। यू पुट इमोशन टू द टेक्नोलॉजी और वो हम आज तक 10 काम कर रहे थे इन पर्टिकुलर गिवन आवर्स ड्यूरेशन। अब टेक्नोलॉजी के आने से हम वो चीज डाल के और बड़ा कर सकते हैं, हम अपना और काम कर सकते हैं। तो आई थिंक अ गुड स्टोरी रिमाइंड अस, you know, our own struggles, hopes, the questions that are shared with many of, you know, to the world, and that can be done more conveniently, easily with the help of AI or technology. So I am in favor of that, but with the judicious usage like that. Beautiful, beautiful. Thank you, Shweta. And there's a comment from Meenakshi ji again. मुझे श्वेता को सुनकर लगा जैसे वो लखनऊ से है, उनकी बोली से लगा। जी, मैं पेशावर से हूँ, पर मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल खालिस हिंदुस्तानी हूँ। रूट्स मेरी पेशावर से हैं, और जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि हमारे यहाँ उर्दू, पश्तो और पंजाबी, संस्कृत बोली जाती है। मेरी मदर संस्कृत स्कॉलर है, मैं फ्रेंच ऑलियंस फ्रांकेस से हूँ, मेरे फादर उर्दू और दादाजी उर्दू, सब आमीज। तो ये सब है, तो ये सब झोल है। वो झोल बहुत ही सुंदर है, और वो झोल सुंदर है, उसके आगे की कहानी ये है कि श्वेता इज अ पब्लिश्ड ऑथर एंड obviously is going to come up with her new book very soon. बट अभी जो उनकी बुक है, जो मेरे पास बहुत very soon it is coming to me, and the name of that book is so profound. It is From to Stillness. So Shweta, what has inspired you to give it such a profound, subtle name? Yeah, so as I just mentioned that 2025 तक जितना मुझे चाहिए थी अपने आप के लिए, एक मटेरियलिस्टिक, एक अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो तमगे और ओहदा चाहिए था, वो सब मैंने, जैसे कहा आपको, कि मैंने पा लिया। एक फुल स्टॉप भी तो लगाना ही होता है जिंदगी में, वो तो फिर कभी बंद ही नहीं होगी, चलते ही रहो। एक इंसान को कहीं रुकना भी चाहिए, तो मेरा वो फुल स्टॉप मैंने लगा दिया। ये रिलेटेड है मेरी स्टॉर्म टू स्टिलनेस किताब से, क्योंकि इट इज रिफ्लेक्टिंग माय पर्सनल एंड इमोशनल जर्नी, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट माय स्टोरी और माय एक्सपीरियंसेस, इट इज अबाउट एवरीबॉडी who is living on this earth, of different ages, different work areas, like it's Avni, like it's Meenakshi ji, like it's my own sons, my mother, my father, everybody you can think of. You know what? There's a tagline which is the calm that we carry. Beneath this Storm to Stillness, there's a tagline which says the calm that we carry. So that is the most important thing which we have actually forgotten about ourselves, and that is हमारे अंदर already एक शांति है, silence है, right. The calm we have, but no,
हमें तो पहाड़ों में जाना है, हमें तो दरिया के किनारे जाना, हमें रिट्रीट्स में जाना है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी आर्ट, रिट्रीट्स एंड ऑल. आई हैड गॉन देयर, बट मेरे लिए अपनी एक जर्नी है मेरी. किताब में ये मेंशन्ड है कि आपको वहां जाइए, आपको लगता है कि आपको वहां शांति मिलती है, जाइए. लेकिन बेसिकली जो, क्योंकि गीता मेरा बेस है, मृत्युंजय बेस है, वेदों की स्टूडेंट हूँ, वो काम, वो साइलेंस हमारे अंदर ही है. इस मोमेंट में भी अगर मैं चाहूं तो मैं उस कामनेस को, साइलेंस को एक सेकेंड में ला सकती हूँ. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू एक्नॉलेज. लाइफ में हम सबके इतना नॉइस है. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेशंस, कंफ्यूजन, स्ट्रगल्स, क्वेश्चंस एंड व्हाट नॉट. ये सारे स्टॉर्म को केस एग्जाम्पल्स है, सब पोर्ट्रे करते हैं. और हमें ये नहीं पता कि हम जिस जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हैं, ये हमें कहाँ ले जा रही है. वी डू नॉट नो, राइट. बट इसी वक्त अगर हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, मतलब हमारे अंदर या हम अपने आप को, कि अपने एक्सपीरियंसेस से जो हम लर्न कर रहे हैं वो हमको क्लैरिटी की थ्रू ले जा सकता है. इफ वी एक्नॉलेज दैट साइलेंस, कि आप पूरे दिन शोरगुल में रहते हैं, लेकिन 10 मिनट अगर आप अपने लिए निकालें, वो 10 मिनट में जरा शांति से बैठें और अपने आप में रिफ्लेक्ट करें, वो आपको बता देगा कि आपकी दौड़ और आपका रास्ता सही है कि नहीं. वो क्लैरिटी जिसके लिए हम विपसना चाहते हैं ना, 10 दिन जो वी डू नॉट टॉक, वी डू नॉट यूज फोन, वी डू नॉट टॉक टू एनीबडी इन द आश्रम. That is self reflection. वो आप अपने अंदर जाते हैं. So this journey talks about returning to yourself. The stillness in the title does not mean the life becomes perfect. I have not promised anything in this book. It is the journey where I am asking you to travel along with me, and it simply means that start understanding yourself, which we are not doing. So I have tried to put that. So basically जो chaos बाहर है, उससे वो रहेंगी जिंदगी भर, लेकिन उस मोमेंट में chaos के साथ अपने आप को साइलेंट और काम करके अगर रखें, तो वो तूफान को गुजरने दें. वो गुजरने के लिए ही आया है. अगर आप उसके साथ बह जाएंगे तो फिर आप खत्म हो जाएंगे. So I've tried to do that just based on my own life experiences. This is what all my book talks about. Beautiful. And now when you have explained it, the title sounds so relevant with whatever you have written inside the book. And can we get a crisp idea? What is that one takeaway that the readers could take after reading Storm to Stillness? That this you're not, after reading my book, you're not going to get immediate relief, or you're going to get some गुरु मंत्र या आपके ऊपर अचानक से भगवान आशीर्वाद दे देंगे और आप शांत हो जाएंगे और आप ऋषि मुनि बन जाएंगे. ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है किताब में. ऐसा होता तो मैं भगवा भस्त्री, या मैं भी, हालांकि सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी मतलब ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है. सॉरी, ये डिस्क्लेमर है कि तुरंत आपको कुछ मिलने नहीं वाला बुक पढ़ने के बाद. After this conversation, I'm going to, at the end, I'm going to read something which will give you more clarity. And in any ways, I wish also that you buy this book. This is just a binge read book, 120-130 pages. And मतलब कि अगर आप अंधेरी से बांद्रा या दादर की तरफ निकलेंगे, या उधर तक 1 घंटे में आप किताब खत्म कर देंगे. आप फ्लाई कर रहे होंगे तो आप खत्म कर देंगे. Wow. So basically this is like, you're not going to immediately get any relief or any result out of it. I'm sorry. If you're reading my book because of that, you're wanting to get that, no book on this earth has that. गीता में भी आप solutions दिए हैं. Results नहीं बताए गए. Sometimes, healing happens. That's a gradual process. I mean, मुझे लगता है कि बात करना चाहिए. मुझे लगता है कि आप कम्युनिकेट कीजिए, आप किसी से बात करिए बिना कुछ रिजल्ट के. आप, मुझे लगता है कि बात करने से अंदर का रोष, वो जरा 10-5 मिनट के लिए आप भूल जाएंगे आपकी क्या तकलीफ है. कुछ लोग अकेले ही लड़ रहे होते हैं, अपने अंदर की लड़ाई चलती रहती है उनके साथ, और कुछ होते हैं जो बात कर लेते हैं. तो मुझे लगता है कि दिस बुक इज गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड टू यू. सो I think I tried to serve the purpose. This is the takeaway. Beautiful serving of the purpose. And to the audience, I would also like to say that Shweta is about to going to conduct
a sessions which is called Healing Through Stories, where you are going to enjoy stories, you are going to heal yourself through stories. Because मैंने ये पढ़ा है श्वेता के कहीं कहीं पे श्वेता ने लिखा हुआ है कि हीलिंग जो है वो लिसनिंग से शुरू होती है. Absolutely. तो श्वेता उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, व्हाट आर दिस सेशंस अबाउट? एंड बिकॉज अगर किसी को ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आई एम आल्सो देयर, दे कैन डीएम मी एंड एवरीथिंग. तो Yeah. व्हाट इज इट अबाउट? So, as the name is self-explanatory, that it is a healing through stories. So, as Avni also mentioned, and we are going to have more, addition to the sessions, as in कि कुछ online भी होंगे, कुछ offline भी. तो उसमें हम, I'm going to take few stories. I'm going to narrate that, and I'm going to ask people, those who are going to attend the session, they will come up with their own stories, and that is like not कि written कोई story आ जाए, या कोई हो सकता है कि उन्होंने कोई किताब पढ़ी हो और वो उस स्टोरी यहाँ शेयर करना चाह रहे हो. बेसिकली आई वांट टू हेल्प people to come out from their own issues. I'm not a psychologist. It is just a practice, a try, help, a support to everybody. And I think, Avni, we are not going to have any age barrier. We'll be having different groups for that, right? So it could be for housewives, mothers, corporates, and everybody. And there will be few people, those who will be accompanying us. They will be, I think, psychologists or different. They're from the different backgrounds. वो आपको सुनेंगे. वो 1-1.5 घंटे की जरा से हमारी गुफ्तगू होगी. हम एक दूसरे को सुनेंगे. आप रोएं, हम रोएं, हंसे, खेलें. वो 1-1.5 घंटा हमारा बड़ा खूबसूरत सा जाएगा. उसके जो टेक अवे है वो आपको वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ही समझ में आएगा. तो दैट वी आर कीपिंग एज अ सीक्रेट. एंड आपको कनेक्ट करना होगा इस सेशन के लिए. तो अवनी इज द पर्सन हु इज taking care of everything. इससे बेहतर कौन हो सकता है? Avni is the best person. She herself understands this process. Because I have closely understood what is healing through stories, and I highly recommend it to you people. And we are not keeping any age barriers for that. No. आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए ये सेशन, एंड देन हम बस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं. हम सब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं. और जैसे मैंने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में ही कहा कि मैंने बहुत कुछ इस कुदरत से ले लिया है, अब मुझे वापस करना है. तो शायद आप लोग ही वो मेरे लोग हो, मेरे लिए कुदरत हो, जिसे मैं जो भी भगवान ने मुझे अता फरमाया है, शफा दी है, वो मैं आपको लौटा सकूं. किसी आर्ट फॉर्म की तरीके से हम गाएंगे, हम नाचेंगे, हम बातें करेंगे. ये कोई फॉर्मल सेशन नहीं है ना अवनी? बाकी आप डिटेल दे दीजिएगा जब when we start the process. ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हो रहा है. तो अगर आपको ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना है, that is convenient for you, that works. If you are living in Mumbai and आपको ऑफलाइन करना है, that is also fine. So it is like the most convenient thing. आपको जैसे ज्वाइन करना है आप बता सकते हैं, आपका convenience level, and then we can go around it. एंड क्योंकि हमने स्टोरीज की बातें कर ली, हमने परफॉर्मेंस की बातें कर ली, हमने श्वेता का जो अपनी लैंग्वेज पे इतना तवज्जो है, इतना द वे शी स्पीक्स, we know it now. We know the magic of her storytelling. I would like to ask you, Shweta, we are doing the Shakti talk today, and Shakti is such a powerful word. What does Shakti personally means to you as a woman, as an artist? शक्ति बहुत पावरफुल शब्द है. ये आई मीन पर्सनली मेरे लिए रियल स्ट्रेंथ, रियल शक्ति, अवेयरनेस का दूसरा मायना है. हमारे लिए गवर्नमेंट ने, हमारे लिए दुनिया जहान ने, दुनिया भर के लॉज, पॉलिसीज, ये आईपीसी, पीनल, ये वो दुनिया जहान के लॉज हैं हमारे लिए. कितने लोग इसका फायदा उठा पाते हैं? कितनों को ये बात पता है? कितनों तक ये बात पहुंची है? कितनों को हमारी मेंस्ट्रुअल इश्यूज के बारे में पता है? कितनों को पता है हमारे प्रेगनेंसी इश्यूज के बारे में, पोस्ट एंड प्री? कितनों को पता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज अ पर्सनल, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट शक्ति, सो आई नीड टू मेंशन एंड कोट माय ओन problem here, if you allow me, Avni, that medical issue.
Please go ahead. Please go ahead. इससे बेहतरीन उदाहरण मेरे ख्याल से नहीं होगा. I am not into drinks. I don't smoke. I am not into any drugs. I have only nasha of work. तो 2 महीने पहले, बिकॉज वी आर एक्टर्स एंड वी शूट इन इरान आवर्स, हमारा दिन रात कुछ नहीं होता, 17-18 घंटे हम काम करते हैं. तो मुझे लग रहा था कि हम बॉम्बे तो काम करने ही आए हैं, तो मुंबई में काम करने को अगर मिल रहा है तो करो. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो मैं काम कर रही थी और अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीरियड्स तो आए थे, तो ये अभी 10 दिन के अंदर दूसरे महीने में फिर से पीरियड्स कैसे आ गए, मतलब उसी सेम मंथ में. मैंने कहा कोई नहीं, ऐसा लाइफस्टाइल होता है, जब बिगड़ता है तो ये हो जाता है. 1-2 बार हो चुका है मुझे. मुझे चक्कर आने लगे सेट पे, तो मैंने ओआरएस पी लिया, ठीक हो गई. फिर एक बार ये और हो गया, उसी मंथ के एंड में मुझे फिर से ब्लीडिंग होने लगी. मैंने कहा ये चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा 100% हीमोग्लोबिन डाउन हुआ है. मैंने चेक करा लिया, बीइंग अ मेडिकल फ्रॉम द मेडिकल फैमिली, तो मेरा हीमोग्लोबिन कुछ 7 आया 13.5 से. तो मैं समझ गई कि ये इस कारण से हो रहा है. फिर मैंने अपनी रिपोर्ट्स अपनी सिस्टर को भेजा, शी इज अ सर्जन. मैंने अपने घर में भेजा कि वो पूछते रहते हैं तबीयत वगैरह, तो मैंने भेजा और उनको कहा कि ये, तो उन्होंने ना तुरंत कॉल करके मुझे ये हीमोग्लोबिन का, तो उनका जो पहला सेंटेंस था वो ये था, हीमोग्लोबिन तो हम देख लेंगे, ये तुम्हें लिवर को क्या हुआ है. तो मैंने पूछा लिवर. आप ये मानिएगा कि ना मैं और ना आप में से कोई इतना कभी सोच सकता है ऐसे जनरल लाइफ में कि आपकी लिवर को कुछ, कोई नहीं सोचता जब तक कि कोई प्रॉब्लम आ जाए. तो आई हैड बीन इन माय 3rd स्टेज ऑफ लिवर डीअरेंज्ड, और वो सारे सिम्टम्स थे जी. और 4th स्टेज में आपका लिवर सिरोसिस हो जाता है, मतलब लिवर गेट्स डैमेज्ड. सो आई वाज इन अ डेंजरस स्टेज. And stage was that normally SGPOT and SGOT कुछ 30-35 के अराउंड रहता है, मेरा 694 था. इसका मतलब कि वो एंजाइम्स जो थे मेरी बॉडी में, जो प्रोटीन सेल्स को मार रहे थे, वो मेरे ब्लड स्ट्रीम में जाके कुड हैव गिवन मी कार्डियक अरेस्ट, मेरा लिवर जा सकता था, मेरी कुछ भी हो सकता था. मतलब मैं वर्स्ट आपको बता रही हूँ, जो कि है, सच्चाई है. मुझे कभी नहीं मालूम चला कि मुझे ब्लीडिंग यहाँ भी हो रही है, मेरे मतलब मस्कीटो बाइट ऐसा फील होता था, कुछ नहीं. तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये सारी चीजें हो रही हैं. और ये किताब लिख के उसके बाद मुझे उसको वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च कराना था. अब शक्ति यहाँ कैसे आती है. मुझे लगता था कि माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट होता है तब इंसान पावरफुल होता है, अलाइंड है तो शक्तिशाली होता है. आप इमेजिन करिए मेरे साथ ये जो हुआ, और जब अब मेरे पास सारी दुनिया की मेहनत करने के बाद, जिंदगी की मेहनत करने के बाद, अब जब हासिल करने का टाइम आया, तो मैं लिवर के इस इश्यू से ग्रसित थी. मुझे इमीडिएटली एडमिट करके सर्जरी कराई गई, क्योंकि वो ऐसी कोई छोटी बात नहीं थी. तो मुझे मेडिसिन दी नहीं जा रही थी, वो सब आईबी के थ्रू थी, क्योंकि वही हैम्पर कर रही थी. तो मैं परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा. मैं वही थी जो श्वेता पहले, उसके इस इशू के पहले जो मेरी सोच थी, और उसके बाद मैं सिर्फ फिजिकली डाउन हो रही थी, क्योंकि फिजिकली तो आप होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो बैठे हैं एंटीबॉडीज, एंटीजन्स, वो फाइट कर रहे हैं. ठीक है, वो हमने देख लिया. लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब जिसे कहते हैं होना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि माइंड और बॉडी और सोल मेरा अलाइन थे. दिस इज व्हाट इज शक्ति. मैं अवेयर थी अपनी चीजों से. मुझे बताने की या बोलने की, थैंक यू, मुझे जरूरत नहीं पड़ी. और मैंने अपनी जिंदगी की एक और परीक्षा, एक और लड़ाई बड़ी आसानी से निकाल ली, क्योंकि मेरे लिए रियल स्ट्रेंथ लाइज इन अवेयरनेस. मुझे मालूम था मेरे वैल्यूज क्या हैं, मैं कहाँ खड़ी हूँ, अपनी डिग्निटी को लूज किए बिना सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस में मैं कैसे रह सकती हूँ. दैट इज व्हाट इज शक्ति फॉर मी. Courage to speak the truth, to speak your emotions, and to be vulnerable is what is Shakti for me. This is Shakti. So deep this is that I just took a moment to let it sink inside me. Because you are right. ये सारी चीजें करेज के साथ वल्नरेबिलिटी को बैलेंस करना,
is what is called And Shakti. you had been with me, of course, in this journey. जब हमारी मुलाकात हुई, you were there. And your energy, it is like, it never for a moment I felt कि नहीं ये अभी बीमार थे, and she has come for a storytelling, and she's performing musical storytelling, which takes more energy. But now I Energy. know how Shakti Actually, looks Abhi, also. yeah, there is one more reason why I am like this. Experiences तो ठीक है, लेकिन मेरे ना पापा ने, मेरे दादाजी ने मेरे घर में दो चीजें हमें सिखाई हैं जिसे मैंने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, और वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है. एंड यू नो मी दिस, हाउ द वे आई एम. हमारे दादाजी, पापा ये कहते थे कि आपकी डिक्शनरी में दो चीजें, दो शब्द हैं. वो क्या है? एक है सच और एक है डरना नहीं. तो जिस दिन आसमान गिरेगा उस दिन हम डरेंगे, तो वो तो वही नलीफाई हो गया. तो जिस दिन आसमान गिरेगा तब डरेंगे. कौन सी चीज है जिसका सोल्यूशन नहीं है? तो वो जो एक तो स्ट्रेंथ वही आ गई. और जिसने सच बोला है उसको तो किसी के पापा से भी नहीं डरना चाहिए. तो वो वैसी स्ट्रेंथ, आप शक्तिशाली हो गए. तो This is ये है रीजन. wonderful. बहुत बढ़िया. हमारे साथ एक और ज्वाइन हुए हमारे राइटर मधु जी. शी इज ऑल्सो सेइंग हाई टू यू हेलो. एंड शी इज लिसनिंग टू यू. और श्वेता, आपने ये जो चीजें तो आपके पापा ने बोली है ना, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस नाउ, बिकॉज दिस इज हैशटैग दैट आई एम गोइंग टू यूज फॉर लाइफ. Yeah. बड़े काम I'll की tell चीजें, him बड़े that you काम got की चीजें. another daughter now. This is my pleasure. This is what to say pranam to him, because I have, if you have ingrounded what your father has taught you, and now when we look at you, it is so inspiring and enriching because you are still vulnerable where you have reached. मैंने ना एक कहीं पे लिखा था कि जो बड़े लोग होते हैं ना, सच में बड़े, वो दूसरों को छोटा महसूस नहीं कराते. एंड यू आर लाइक द एपिटोम ऑफ दैट स्टेटमेंट. अरे जो नहीं सच नहीं. में बड़े होते हैं वो दूसरों को छोटा नहीं महसूस कराते. बड़े So, कौन yeah. होते हैं? बड़े कौन होते हैं या छोटा कौन होता है? दुनियादारी ये कहती है कि बड़ा वो जिसके पास बहुत पैसा है, या वो जिसका ओहदा बड़ा है ना. बड़ा हाँ, इसी की, या उम्र में बड़े हैं. यही yeah, पैरामीटर्स और है, यही हाँ, पैमाना है. छोटा कौन? जो इन हाँ, सब में कम है ना. जिसका दिल सुंदर है, जिसकी रूह खूबसूरत है, और जो साफ है मन से, दिल से, उसके चेहरे पे भी झलकता है और उसकी नीयत में भी होता है, वो नीयत में भी झलकता है. तो ईमान, नीयत और धर्म जिसका क्लियर है यहाँ, उसको कोई नहीं रोक सकता. देर आए दुरुस्त आए वाला किस्सा है, लेकिन वही है कि हमारे मम्मी पापा ने भी ये बताया है, जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है और जो भी हमने इतने सालों में सीखा पड़ा, वो यही है कि सच वैसे भी बहुत धीरे धीरे चल के आता है, लाइक अ टोर्टोइज. जीतता वही है. तो बहुत मुझे, खूब. आपने कहा कि आप आपके इतने वो हैं, टाइटल्स हैं, ये वो. मुझे किसी ने पूछा था लास्ट पॉडकास्ट में कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू. My answer from the beginning till now is the same. It's a journey. I feel happy. It's okay, but it is not the end point. What is success? I am successful at this moment. I have a beautiful house. I have beautiful 2 children. I have now become an author. My life is beautiful. Whatever I am doing, it's on my own terms. What else is success? I'm talking to Beautifully such put. beautiful soul already, talking freely, informally, coming out with whatever I have in my mind on this beautiful Storyscapers platform. Beautiful ladies listening me. इससे बड़ी सक्सेस और क्या हो सकती है? लोग उसके पीछे भागते हैं, सक्सेस चाहिए. बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब. दिस इज सो इंस्पायरिंग एंड वी डोंट फील लाइक डूइंग दिस, बट वी नो दैट वी हैव ऑलमोस्ट कम टू एन एंड ऑफ द शो. But now that our readers, our writers and audience knows many things about you, Shweta, जो आपने अब तक किए हैं, जो आप अभी कर रहे हैं. But then what is Shweta's next chapter of life? What does the next chapter of your life look like? As I mentioned that Bazme Dastan is my brand. So not restricting to only Bazme Dastan, I want to create and expand this impact of storytelling to places, peripheries. मुझे बहुत
दूर तक ले जाना है. So अभी पूरी एनर्जी और पूरा जो थॉट प्रोसेस है, I want to create spaces in this conversational area. You know, through storytelling sessions hai, writing hai, meaningful conversations like this. I want to keep doing this. I want people to talk. I want them to heal. सब परेशान है. मैं भी कहीं ना कहीं तो परेशान हूं ही. मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही क्योंकि मेरा तो अभी थोड़ा लंबा है प्रोसेस. इट इज गोइंग टू टेक, आई डू नॉट नो हाउ मेनी इयर्स. तो मैं भी परेशान हुई. वही जो बुक कह रही है कि केओस रहेगा, पर उस समय आप स्टिलनेस और कामनेस. इस वक्त आप मुझे जान सकते हैं कि मैं थर्ड स्टेज पे हूँ. तो मेरे लिए to help somebody, the same thing, giving back to the nature is more important. And if the medium is storytelling, that's a very new perspective. I mean, perspective as in the medium is new. Yeah. It's not about only the growth in my career, Avni. It's about contributing the meaningful, you know, something very important and meaningful to the people and giving back to the society. Yeah. So that is my, मेरी रूह बसती है इसमें. मेरा बस चले तो मैं क्या नहीं कर जाऊं, लेकिन लिमिट होती है रिसोर्सेज की, वक्त की, सेहत की. तो ये है. आपकी सोच दोनों ही बहुत सुंदर है. And we have one question for you from Purnima ji. She's asking, can she just get some name of serial that you are working? Yeah. So Purnima ji, right? Namaste. Yeah. पूर्णिमा जी, मेरे 2 शोज हैं, वसुधा जी टीवी में और कलर्स में बिंदी. अब वसुधा में लीप आ गया है मेरा, बट Z5 में आप मुझे देख सकती हैं, जो पहले रिकॉर्ड होके बाहर आ गए हैं, टेलीकास्ट हो गए हैं. और बिंदी जो है वो आपको हॉटस्टार में, डिज्नी हॉटस्टार में, सॉरी जियो हॉटस्टार में मिल जाएगा. दोनों बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. आप बहुत हंस के पागल हो जाएंगे. और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं. जरूर आपको देखेगी हमारी ऑडियंस. बिलीव इन दैट. एंड मीनाक्षी जी ने कहा है, श्वेता को सुनना और हिम्मत भर गया मुझ में. श्वेता को सुनकर और हिम्मत भर गई मुझ में. थैंक यू मीनाक्षी जी. मैं श्वेता, आप श्वेता, क्या आप कुछ हमारे लिए कुछ छोटा मोटा पढ़ सकते हैं? या Avni, so this is my book. You can see this is Storm to Stillness, and it's written here, the calm that we carry. So yeah, and we are going to put the Amazon link of this book in our comment section. Please go on Amazon and buy the book. Yeah, so you can see here lots of chaos here, and finally the calmness. So I would want to read just the last page, and which says, the journey continues in you. So after reading your book, you will find this last page which says, we have traveled from storm's roar to its hushed center. That is our silence core. We have seen that stillness is not escape but engagement, not retreat but return. The practices, the stories, the science, all are fingers pointing to the same moon. Now close the book for a moment, feel the quiet pulse behind our ribs, and notice how the moonlight is already spilling across your own skin. May your days be busy if they must, but never again noisy in the place that matter. May your mind be clear water in which every suffering can see its reflection and soften. The storm may continue outside these pages, yet inside us the sky is wide, the ocean is deep, the stillness is unbroken. Take it with you, guys. Become it. And when someone next to you forgets, let your quiet resonate. I bow to the stillness that you are. Storm to stillness. Thank you. This was so calming. मतलब ऐसे सुन के ऐसा लग रहा था कि okay, this is not an end. This is something that when I close the book, I am going to live into something new, enter into something new. ये वैसे वाला feeling था. Yeah, you have to be in the process of becoming.
मान लीजिए शक्ति है, मान लीजिए हम हैं, देवी हैं, हम हैं, इसमें कोई फेमिनिज्म और कोई कंट्रोवर्सी और किसी बहस और आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, हम हैं, जस्ट एक्नॉलेज दैट. Wonderfully said, Shweta. And I must say, throughout this session, after ages, I have interviewed someone and I felt like पूरा session ही musical था. I mean, you answered the questions so rhythmically, so poised, and so beautifully that it was like मुझे ऐसा लगा कि मैं एक स्टोरी टेलिंग सेशन ही मॉडरेट कर रही हूँ. So it was that आपके सारे जवाब, जो आपकी सोच की सुंदर महक है ना, वो आपके जवाबों से हमें और हमारी ऑडियंस को मिल चुकी है. And we look forward to host you sometime again with something new. And thank you so much. We are Thank you. more than glad to have you. Thank you, Avni, for giving me this opportunity, and I hope I was able to answer all your questions. And I wish everybody, those who are listening, a beautiful Women's Day, and keep laughing, keep smiling, and keep living, and keep becoming. That should be the formula. And with these words, I would want to close this conversation, and I hope I did well. You are amazing. And there's Madhuji who is saying thank you for this session. So yeah, थैंक यू फॉर Shweta, लिसनिंग मी. थैंक यू. कोई त्रुटि हुई हो, कोई खामी हो तो जरूर बताएं, और आप जरूर जुड़े. अवनी इज गोइंग टू पुट फोर्थ द डिटेल्स yeah, अबाउट द हीलिंग स्टोरीज. we will put it in the comment section and we'll be tagging our writers. And thank you, Shweta, on behalf of Team Story Scrapers, and to my dear audience. Thank you so much for taking out your time on a weekend and listening to us. And जो हमारे साथ नहीं लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं या हमें नहीं पढ़ रहे या पढ़ना चाहते हैं, प्लीज ज्वाइन स्टोरी स्क्रैपर्स. Please join the daily contest that go through them, write with us, read with us. And yes, कल एक और सेशन है जो श्वेता मल्होत्रा जी होस्ट कर रही है, तो प्लीज. अरे वाह, सब श्वेता श्वेता. श्वेता श्वेता है तो कल श्वेता मल्होत्रा जी एक शो होस्ट कर रही I'll be है. there. I'll be there in the audience and listening. And thank you यार, मुझे आपने इस Okay. ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में जोड़ा भी है. मैं भी लोगों से बातचीत मिलूंगी. And I'm soon going to start with my Insta live talking about stories. So आप लोग हमें फॉलो कीजिए, हम आपको फॉलो करें. We'll build a community. Thank you. Thank you. बिल्कुल. Thank you so much and happy Women's Day to everyone. Enjoy your day today and tomorrow and every day. See ya. Thanks a lot. Bye bye. Bye.